आनंदित हूँ इन दिनों में, जो जिन बातों को मैं चाहता था प्रभु वो बातें मेरे जीवन में लेके आ रहा है, और बहुत खुश हूँ कि प्रभु मुझे अपने राज्य के लिए इन दिनों में बहुत आयत से इस्तेमाल कर रहा है। सो आइए हम टाइम ना ज्यादा गवाते हुए हम खोलेंगे आज के मनन के लिए सेकंड किंग, दूसरा राजा, उसका जो है 2 अध्याय, चैप्टर 2 और 2 वचन से कोई भी जन पढ़े जो हम आज मनन करने जा रहे हैं। 2 चैप्टर 2 वर्स 2 टू 15 तक। Second King chapter 2 verses 2 to 15. Elijah said to Elisha, "Stay here. The Lord has sent me to Bethel." But Elisha said, "As surely as the Lord lives and as you live, I will not leave you." So they went down to Bethel. The company of the prophets at Bethel came out to Elisha and asked, "Do you know that the Lord is going to take your master from you today?" "Yes, I know," Elisha replied, "but I do not speak of it." Then Elijah said to him, "Stay here, Elisha. The Lord has sent me to Jericho." And he replied, "As surely as the Lord lives and as you live, I will not leave you." So they went to Jericho. The company of the prophets at Jericho went up to Elisha and asked him, "Do you know that the Lord is going to take your master from you today?" "Yes, I know," he replied, "but do not speak of it." Then Elijah said to him, "Stay here. The Lord has sent me to Jordan." And he replied, "As surely as the Lord lives and as you live, I will not leave you." So the two of them walked on. 50 men of the company of the prophets went and stood at a distance, facing the place where Elijah and Elisha had stopped at the Jordan. Elijah took his cloak, rolled it up, and struck the water with it. The water divided to the right and to the left, and the two of them crossed over on dry ground. When they had crossed, Elijah said to Elisha, "Tell me, what can I do for you before I am taken from you?" "Let me inherit a double portion of your spirit," Elisha replied. You have asked a difficult thing," Elijah said. "Yet if you see me when I am taken from you, it will be yours, otherwise not." As they were walking along and talking together, suddenly a chariot of fire and horses of fire appeared and separated the two of them, and Elijah went up to heaven in a whirlwind. Elisha saw this and cried out, my father, the chariots and horsemen of Israel." And Elisha saw him no more. Then he took hold of his own clothes and tore them apart. He picked up the cloak that had fallen from Elijah and went back and stood on the banks of the Jordan. Then he took the cloak that had fallen from him and struck the water with it. Where now is the Lord, the God of Elijah?" he asked. When he struck the water, it divided to the right and to the left, and he crossed over. The company of prophets from Jericho who were watching said, "The spirit of Elijah is resting on Elisha." And they went to meet him and bowed to the ground before him. यहाँ पे हमने पढ़ा और सुना बहुत, जो है मैं इन दिनों में जब पढ़ रहा था, राजाओं की किताब से पढ़ रहा था, तो बहुत कुछ यहाँ पे देखने को और सीखने को मिला। प्रभु ने अलग तरीके से जो है बातचीत किया कि जो एलिसा था उसके अंदर कितना मतलब अच्छी बात हमें सीखने को मिलती है। जब हम इसको पढ़ते हैं पूरे अध्याय को, 2 अध्याय में शुरू करने के बाद जो है वचन 2 में जब उसको पता चलता है, एलिया को पता चल जाता है कि मेरा जो मास्टर है जो मुझसे अलग होने जा रहा है अभी, और उसको वो बोलता है कि मैं कहीं और जाता हूं, तू यहीं ठहरा रहे, ठीक है। लेकिन वो नहीं मानता है और उसको बोलता है मैं साथ में ही जाऊंगा। इवन जो वहां कुछ लोग जो भविष्यवक्ताओं के चेले थे, लोग उसको बताते हैं, क्या तुझे ये पता है
आज जो तेरा मास्टर है तुझसे अलग होने जा रहा है, आज वो तुझे छोड़ देगा और तेरे से अलग हो जाएगा। लेकिन वचन 6 में, सॉरी 4 में 6 में यहाँ पे 3 बार जो है ऐसा उसके साथ होता है, लेकिन वो उनको बोलता है तुम चुप रहो, कुछ मत बोलो। उसको पता होते हुए भी जब 3 बार एलिया उसको बोलता है कि तू यहाँ ठहरे रहा है, मुझे वहां जाना है, यहाँ ठहरे रहे, मुझे वहां जाना है, लेकिन एलिया ने जो है उसको नहीं छोड़ा। और साथ साथ जो है अगर हम इन बातों को उसने नहीं तो वो वहां पे रुक भी सकता था, लेकिन नहीं, उसने जो है जिद की और उसके साथ साथ चलता रहा। मुझे एक उदाहरण याद आता है, जब मैं बाइबल कॉलेज में था, मुझे हमें जो है एक टीचर ने बताया कि एक बार क्या होता है कि एक लड़का होता है और वो अपने बाप जो है बाप के जो है और दोस्तों के साथ जब घूमने जाता है या बाप के साथ घूमने जाता था, तो वो प्रार्थना करते हुए उनको जो है उनके साथ जाता था। एक बार क्या हुआ, उसके जो है सारे दोस्त, उसकी प्रार्थनाएं थोड़ी कम हो गई, उसके दोस्त भी उसके साथ उस दिन नहीं थे और उसका बाप भी उस दिन उसके साथ नहीं था, और वो चलते चलते रास्ते में ऐसे जा रहा था। बीच में जाते 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 वो जो है पीछे मुड़ के देखता था, तो उसके जो है समुद्र में पांव के निशान रहते हैं, जब रेत पे हम चलते हैं ना, पांव के निशान उसके देखता था कि मैं कितने दूर चल के जा रहा हूं। और जब वो पीछे देखता था तो उसको कई बार ऐसे महसूस होता था कि जब उसके यार दोस्त उसके साथ नहीं है, परमेश्वर उसके साथ है, क्योंकि उसके पीछे जो है 4 पांव के निशान होते थे, 2 उसके 2 परमेश्वर के। धीरे धीरे ऐसे चलता गया। एक दिन क्या हुआ, उस बंदे के जीवन में बहुत सारी मुसीबतें से उसने उस आगे बहुत निराश हो गया, उसके दोस्तों के छोड़ने से कोई उसके साथ नहीं था, मुसीबतें उसने उसे घेर लिया। तो उस दिन जब वो उस जगह से चलते चलते जा रहा था, चलते चलते जाते 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 उसने पीछे की तरफ मुड़ के देखा, तो क्या देखा, 2 ही पांव के निशान है। और जब उसने देखा, कहते मेरे पीछे 2 ही पांव के निशान है, तो यार दोस्त भी छोड़ गए, अपने माता पिता भी छोड़ गए, सब छोड़ गए, आज तो परमेश्वर ने भी छोड़ दिया, क्योंकि परमेश्वर जो है मेरे साथ 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 चलता था। 4 पांव के निशान होते थे, आज तो 2 ही पांव के निशान है। तो उसके मन में ऐसे विचार आया और उसने प्रभु से पूछा, प्रभु मैं तो दुआ भी कर रहा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ और सब कुछ मेरा जो है लगातार ऐसे ही होते आ रहा है, लेकिन आज आप मुझे, दुनिया वालों से कोई कंप्लेंट नहीं है, दोस्तों से कोई कंप्लेंट नहीं है, पिता भी जो है छोड़ सकता है, ठीक है, लेकिन मुझे सबसे बड़े दुख का बात ये लगा कि आज आप भी मेरे साथ नहीं है। तब प्रभु की आवाज ने उसको, प्रभु की आवाज उसके मन में आई, कह रहे बेटा मैं तेरे साथ हूँ। कह रहा नहीं, कहाँ साथ हो आप, आज तो 2 ही पांव के निशान है, हम दोनों होते तो 4 पांव के निशान होने चाहिए थे। तो तब परमेश्वर ने उसको बताया कि आज जो है मैंने तुझे अपनी गोद में उठाया हुआ था, जो 2 पांव के निशान वो मेरे है, तेरे नहीं है। सो जब हम परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं, परमेश्वर के हजूरी में चलते हैं, परमेश्वर जैसे हम भजन संहिता में देखते हैं 91 में, परमेश्वर हमको अपने मुसीबत के टाइम पे हाथ उठा के चलता है। हमारी मुसीबत जो है हमसे बड़ी नहीं हो सकती। पिछले दिनों में एक वो प्रभु का गीत तो नहीं, लेकिन मुझे बहुत पसंद है और बड़ा बढ़िया गीत है। छोटे से जो चिकन होते हैं उसके बच्चे होते हैं, वो धीरे धीरे में चढ़ने की, लेकिन वो चढ़ नहीं पाते, लेकिन वो कंटिन्यू जो है उस एक्सरसाइज को दोहराते रहते हैं और वो चढ़ जाते हैं। तो वहां पे गीत गाते हैं कि ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, मेरी मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। सो जब हम परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं, या हम परमेश्वर की रहनुमाई में चलते हैं, या परमेश्वर की हजूरी में चलते, परमेश्वर के दासों की हजूरी में जो परमेश्वर ने नियुक्त किया उनके कहे के अनुसार चलते हैं,
तो परमेश्वर जो है हमको आशीषित करता है। अभी यहाँ पे जो हमने पैसेज पढ़ा, जब इसका हम 2 का 9 वचन में देखते हैं, 9 वचन में ऐसे देखिए, पहले एलिया ने एलीशा कुछ नहीं बताया, और एलिया भविष्यवक्ताओं के चेलों को भी बोल रहा, भैया अभी तक तुम चुपचाप खड़े रहो, कुछ बोलने का कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप जो हो रहा है उसको देखते रहो। लेकिन 9 वचन में जब उसकी इन आज्ञाओं, मतलब आज्ञाकारिता को, इन सारी बातों को हम देखते हैं, उसके आगे लिखा हुआ है, उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा। अभी उसका मास्टर खुद उसको इतना मजबूर हो गया, भाई ये बंदा मान नहीं रहा है, ये तो मेरी सुन भी नहीं रहा, ना ये मेरा पीछा छोड़ रहा है, तो खुद उसका मास्टर उसको अपने मन की बात फिर बताता है, क्योंकि उससे पहले उसने नहीं बताया। 3 बार उसने मना किया, भैया तू यहीं रुका रहा है, मैं आगे की ओर जा रहा हूँ और मुझे ये है, लेकिन उसने बोला नहीं, मुझे तेरे जीवन की और यहोवा के जीवन की शपथ, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो उसने उसके इतना, मतलब इतना तक उसने वो कर लिया कि उसके मन के बात 9 वचन में निकाल ली। और 9 वचन में लिखा है, उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। जब हम परमेश्वर की हजूरी में, परमेश्वर के दासों की हजूरी में, पवित्र आत्मा की हजूरी में जो है लगातार चलते हैं, दुनियादारी को छोड़कर, दुनियादारी की बातों को छोड़कर, और दुनिया में क्या होता है उन सारी बातों को त्याग कर, जब हम परमेश्वर के पीछे पीछे चलते हैं और परमेश्वर के राज्य को ढूंढते हैं, जैसे वचन में लिखा, उसके धर्म और राज्य की खोज करो, जब उसके राज्य की हम खोज करते हैं तो हमारे जीवन में ऐसी ऐसी बातें प्रकट होती है। और एलिया खुद उसको कहता है, अब मुझे भाई मजबूर हो गया, बता मैं तेरे लिए क्या करूं, मुझे तो तेरे से अलग होने का टाइम आ गया, लेकिन बता दे, फिर भी मैं तुझे कुछ आशीष देना चाहता हूं, क्या मैं तेरे लिए करूं। तो 10 वचन में लिखा है, एलिया ने कहा, सॉरी उसका बी पार्ट में लिखा, एलीशा ने कहा, 9 का बी पार्ट में, एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। बहुत सोचने वाली बात है। अगर हम आज की इस टाइम की परिस्थिति को हम देखेंगे, अगर किसी के सामने भी ऐसी अपॉर्चुनिटी आए, उसको पूछा जाए भैया क्या चाहिए, बोल आज तेरी सारी मांगे पूरी होंगी, बता क्या चाहता है, क्या बोलेगा, मुझे मोदी को इधर हटाओ, मुझे उसकी सीट में बैठा दो, है ना, या मुझे कोई ये दे दो, वो दे दो, या बड़ा इधर क्या नाम है, बढ़िया एक सेक्टर में बढ़िया जगह में मुझे कोठी दे दो, BMW कार दे दो, मेरा बैंक बैलेंस इतना बढ़ा दो कि मेरी 6-7 पुश्ते तक खाती रहे और कहते रहे हमारे माँ बाप ने मेरे लिए ऐसे कहा किया। लेकिन आत्मिक लोगों की आत्मिक बात होती है, शारीरिक लोगों की शारीरिक बात होती है। ये आत्मिक था एलिया, इसने कहा मुझे जो है, जो तेरे अंदर है उसका भी डबल चाहिए। उसने ये नहीं मांगा कि जो तेरे अंदर है वही मुझे दे, कह रहा मुझे उसका डबल चाहिए भाई, 2 गुना मसा चाहिए। 10 वचन में जब हम पढ़ते कहता है, भाई ये तो तूने बहुत कठिन मांग लिया, अगर तू बोलता जितना तेरे पास है उतना मुझे दे दे तो मैं तुझे बोल देता चल भाई हो गया, मिल गया। मेरे पास 100 रुपया है, अगर हमारी जेब में 100 रुपया है और कोई बोलेगा भैया 200 रुपया दो, तो 100 तो हमें फिर कहीं और से अरेंज करना पड़ेगा, है ना। लेकिन इसने बोला कि बहुत कठिन है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, फिर भी मैं देखता हूं, लेकिन उसमें एक कंडीशन है कि जब तक मैं तुझसे अलग ना हो जाऊं, अगर तू मुझे उस टाइम तक देखता रहा तो तेरे लिए ऐसा हो जाएगा, है ना। और आगे जब हम पढ़ते जाते 11 में जो है, वचन 11 में हम जब देखते हैं, एक अग्निमय रथ पवित्र आत्मा परमेश्वर यहोवा की तरफ से आता है और एलिया को अग्निमय रथ के द्वारा उठा लिया जाता है। जब उसको उठा लिया जाता है तो वचन 15 तो उसमें लिखा है, उसे देखकर भविष्यवक्ताओं के चेलों ने जो यरीहो में उसके सामने थे कहने लगे, एलिया में जो आत्मा थी वही एलीशा पर उतर गई है। जब
ये उसको देखता रहा जब वो जा रहा था। तो इसके बीच का भी मैं थोड़ा बताता हूं। जब वो चला गया तो उसने जो है, जो उसकी चद्दर थी, जो एलिया की चद्दर थी, जो जाते समय उन्होंने रास्ते में पानी आया, पानी के ऊपर उसने मार दी और पानी दो भाग में बंट गया और वो लोग चले गए, है ना, उन्होंने उसको पार कर लिया। तो वो चद्दर उसके ऊपर आई थी। सब लोग जानते इस पैसेज को कि एलिया ने, फिर जब एलिया ने वही चद्दर उठा के जब दोबारा पानी पे मारी तो उसकी जो है चद्दर के द्वारा एज इट इज हो गया। लेकिन अभी भी एलिया को थोड़ा ये था कि अरे वो तो चला गया, पक्का कंफर्म नहीं हुआ से, पता नहीं मुझे जो है डबल पोर्शन मिला है कि नहीं मिला। लेकिन जब हम इसको आगे पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि कैसे कैसे उसको फिर दुगना मसा जो है परमेश्वर ने दिया। एलिया का डबल पोर्शन है एलिसा को मिला। अब हम इसके दूसरे पहलू में जाएंगे। इसमें हमने क्या देखा, जब एलिया के प्रति एलिसा आज्ञाकारी रहा, वो उसका चेला या सर्वेंट भी कह सकते, उसका सर्वेंट था, लेकिन आज्ञाकारी रहा तो उसको क्या मिला, डबल पोर्शन। मेरे साथ खोलिए। ऐसे ही सेम इसका अपोजिट होता है। जब हम 5 अध्याय में जाते हैं, ये एलिया का सर्वेंट जो है एलिसा था, इसको डबल पोर्शन मिल गया। लेकिन और एलिसा का एक सर्वेंट था। अध्याय 5 में हम जाएंगे, 2 किंग चैप्टर 5 और वचन वर्ष हम 20 से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, सब लोगों ने पढ़ा है, फिर भी मैं पढ़ता हूं कि परमेश्वर के भक्त एलिसा, जिसको डबल पोर्शन मिल गया, अभी एलिया का डबल पोर्शन उसने प्राप्त कर लिया, उसका दुगना मसा उसको मिल गया। लेकिन उसका भी एक चेला था कि परमेश्वर के भक्त एलिसा के सेवक गेहाजी, उसका जो है एक गेहाजी नाम का सेवक था एलिया का, ठीक है। गेहाजी सोचने लगा, मेरे स्वामी ने तो उस अरामी नामान को ऐसे ही छोड़ दिया कि जो वह ले आया था उसको उसने ना लिया। अगर हम इस पूरी स्टोरी को पढ़ेंगे तो क्या होता है, सब लोग जानते हैं, हमने बाइबल पढ़ी है कि नामान नामक एक बंदा जो है, उसको जब बताया जाता है तू एलिया के पास चला जा, तेरा कोढ़ जो है शुद्ध हो जाएगा, है ना। लेकिन एलिसा का एक चेला था गेहाजी। जैसे एलिया का चेला एलिसा था, ऐसे ही एलिया का चेला गेहाजी था। और जब वो उसके पास आया, उसने बोला, भैया यरदन नदी में जाके 7 बार डुबकी मार लो, तुम चंगे हो जाओगे। उसने बोला, क्या हमारे पास इतने बढ़िया बढ़िया स्विमिंग पूल है, ये मुझे क्या बोल रहा है, कहाँ भेज रहा है ना, मैं वहां जाके नहा लेता। लेकिन आज्ञा मानना, जो हम एक बात सीखते हैं, परमेश्वर के दासों के मुख से जो निकलता है वो कुछ भी बोल सकते हैं। यहाँ पे हमें सीखने को मिलता, जब नामान को एलिया ने बोला कि जाके यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगा ले, वो नाराज हो गया। अरे क्या बोल रहा है ये, मैं इतनी उम्मीद लेके, इतनी आस लेके इसके पास आया था और ये मुझे ऐसे उधर यरदन नदी में जाने के लिए बोल रहा है ना। हमें इन शब्दों से सीखने को मिलता, जो परमेश्वर के लोग होते, जो परमेश्वर की हजूरी में रहते, जो पवित्र आत्मा की हजूरी में रहते, वो कभी गलत नहीं बोलते। कई बार अजीब जैसा हमको लगेगा, लेकिन उनके कहे के अनुसार जब हम करते हैं तो हमारे जीवन में अद्भुत से अद्भुत होता है। और यहाँ पे हम देखते हैं, जब उसके नामान के जो साथ आए तो उन्होंने बोला, भैया तेरे को और कुछ कठिन काम बताते तब फिर भी तो करता ना, इतना आसान काम बताया, जाके यरदन नदी में डुबकी मार ले यार, तेरा क्या बिगड़ रहा है। तो जब उसने उसके कहे के अनुसार जाके यरदन नदी में डुबकियां लगा दी तो वो जो है बिल्कुल हो गया, बच्चे जैसा शरीर हो गया उसका कोढ़ जाता रहा। जब उसका कोढ़ उतर गया तो जब पुराने नियम में ऐसे वो एक ऐसे मतलब उनका एक कल्चर होता था, अभी भी कल्चर है, हम किसी के घर में जाते हैं तो कुछ ना कुछ लेके जाते हैं ना, कुछ स्वीट लेके जाते हैं, एप्पल्स लेके जाते हैं, बनाना लेके जाते हैं, किसी को बड़े आदमी को भेंट करने जाते हैं, या अपने जानकारी में या रिश्तेदार में जाते हैं तो कुछ ना कुछ हम लेके जाते हैं, है ना।
इसी तरह से वो जब उसको मिलने के लिए गया तो कुछ उसके लिए कुछ लेके गया, है ना। और यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं, जब उसने एलिशा को बोला कि मैं बिल्कुल चंगा हो गया, लेकिन मैं आपके लिए कुछ लेके आया हूं, और उसमें बहुत सारा मसाला था, उसके पास सोना था, बहुत कुछ मसाला लेके आया था, है ना। और जब उसको दिखाया तो हाँ, इसमें बाद में आप लोग पढ़ लेना या कुछ लोगों ने पढ़ा भी होगा, एलिया ने बिल्कुल मना कर दिया, कह रहा मेरा परमेश्वर जो मुझे, जिसका मेरे सिर के ऊपर हाथ है, मुझे उसी की आशीष चाहिए भैया, मुझे कुछ नहीं चाहिए तेरा, तुझे परमेश्वर ने चंगा कर दिया, तू जा अपने घर जा और परमेश्वर की बड़ाई कर, लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो जब ऐसा हुआ, जब हम टीम वर्क करते हैं, अभी मैं एक टीम में काम कर रहा हूं जहां पे हम लोग, हमारी टीम में बहुत सारे लोग हैं, और कई बार सर मुझे बहुत डांटते हैं। मैं कल परसों मिल के आया था, उनको भी मैं बता रहा था कि सबसे ज्यादा सर मुझे डांटते हैं। सर को मैंने बोला, सर जी मेरी कोई गलती भी नहीं होती और आप डांटते मुझे क्या मंदिर का घंटा समझते हो, कोई भी आता है मुझे ही बजाता आके, जो भी आ रहा है वो अरविंद को डांटता है, अरविंद को डांटता है। तब मुझे सर ने बैठा के बोला, बच्चे मैं तुझे अपनी जगह में खड़ा करना चाहता हूँ, जो मैं कर रहा हूँ तेरे लिए, परमेश्वर की भी बहुत योजना है, मेरे भी तेरे लिए बहुत कुछ जो विचार है। कह रहा उनको मैं डांटूंगा तो भाग जाएंगे, मुझे पता है, मैं जानता हूं उनके कैरेक्टर को, उन्होंने डांट दिया तो छोड़ के ही भाग जाएंगे, लेकिन तेरे बारे में मुझे पता है, मैं तुझे डांटूंगा तो तू सीखेगा, इसीलिए मैं सबसे ज्यादा तुझे डांट के बनाना चाहता हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा प्यार मैं तुझे करता, और तुझे मैं एक बहुत बड़ा, मेरे मरने के बाद एक लीडर देखना चाहता हूँ, ताकि लोग तेरे अंदर कोई कमी ना ढूंढे, तुझे देख के और लोग सीखने पाए, तू इनको चलाने वाला हो। तब मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ सर मुझसे बहुत चाहते हैं। सो टीम टीम में बहुत सारे अलग तरह के लोग होते हैं। जब एलिया का चेला था जो गेजी था, इसने कहा है ये तो बहुत मसाला लेके आया भाई, बढ़िया बढ़िया बहुत कुछ है, उस चुपचाप खड़ा रहा, देखता रहा क्या क्या चल रहा है। जब वो उसने बहुत मजबूर किया एलिया को, कोई थोड़ा सा तो ले ले, जो मैं लेके आऊं उसमें से कुछ तो ले ले, मैं थोड़ा सा ले ले मेरे से। उसने मना कर दिया, भैया मुझे कुछ भी नहीं चाहिए इसमें से, ठीक है। और जब वो हाजी ने क्या किया, हाजी चुपके से पीछे से निकल के गया, और उसने इसमें पढ़ना बहुत सबसे बुरा काम किया, उसने मालिक के खिलाफ में झूठ बोला। वह उसको जाके जो है नामान को जाके बोलता, सर जी हमारे पास 2 गेस्ट आ गए, थोड़ा सा मटेरियल दे दो हमको, थोड़ा सा सामान मुझे चाहिए, वो मुझे दे दो। गेहाजी ने बोला नामान ने बोला, गेहाजी तुझे जितना चाहिए ले जा, इसको डबल दे दो, जितना मांग रहा है इसको डबल दे दो। और वो लेके, और उल्टा उसने क्या किया, चुपचाप से जाके अपने घर में छिपा के आ गया। जो मिला था, वो जो उसको मिला था, जाके हम इन वचनों में पढ़ते हैं, घर में छिपा के आके, और जाके जो है एलिया के सामने भी खड़ा हो गया। एलिया के सामने जाके जब वो खड़ा हो गया, एक गेहाजी पुट्ठा काम करके, चलो कोई बात नहीं, कई बार हमसे गलती हो जाती है, गलती इंसान से ही होती है, हम लोग इंसान हैं, इंसान गलतियां करता है। किसी ने, समझदार व्यक्ति ने कहा है, इंसान जो है गलतियों का पुतला है, गलतियां हो जाती है। चलो गलती हो गई थी गेहाजी से, कोई बात नहीं, अगर वो उसके बावजूद भी माफी मांगता। कई दिन पहले हम डिस्कशन कर रहे थे, एक जो है बाहर से हमारे पास आया हुआ था इधर फार्म हाउस में, उसने बोला, कह रहे जब परमेश्वर को सब कुछ पता था तो उसने ये क्यों ऐसे भले बुरे का ज्ञान का वृक्ष लगाया, क्यों ऐसे ऐसे किया, है ना। तो जब हम उसके साथ भी हम लोग बातचीत कर रहे थे, है ना, कि परमेश्वर ने उनको स्वेच्छा का मालिक बना था, लेकिन उन्होंने पाप कर दिया, उसके बाद भी परमेश्वर उनको अपॉर्चुनिटी दे रहा था कि उसने आके ये नहीं पूछा, आदम तेरे को मना किया था, तूने फल तोड़ के क्यों खाया, नहीं, परमेश्वर ने फिर भी प्यार से उनके साथ आके बातचीत किया, आदम तू कहाँ है ना। उसने ये नहीं बोला, यार तूने वो जो तेरे को भाई
फल खाने के लिए मना किया था, वो क्यों तोड़ के खा लिया तूने, तेरे लिए इतने फल थे। नहीं, उसने बोला क्या तूने वो फल तो तोड़ के नहीं खाया, लेकिन आदम का रिपीट क्या वो था, रिएक्शन क्या था। अगर वो बोलता गुरुजी सर जी गलती हो गई माफ कर दो, मुझे जो है प्रभु जी परमेश्वर जी माफ कर दो, तो जरूर परमेश्वर उसको गले से लगाता, उसको माफ कर देता। मैं एक बार जो है एक जगह में था, किसी ने एक गलती की, तो मैं उसके साथ बातचीत कर रहा था। मैंने उसको एक उदाहरण दिया, दो लोगों ने गलती किया, बाइबल में दो लोगों ने गलती किया, बहुत सारे लोगों ने गलती किया, लेकिन एक दाऊद ने गलती किया, है ना, एक शाऊल ने गलती किया। गलती किसकी बड़ी थी? गलती अगर हम शाऊल के बारे में और दाऊद के बारे में देखते हैं तो दोनों ने गलत किया, और बड़ी गलती किसने की थी? लेकिन गलती तो कर दी, लेकिन दाऊद ने पश्चाताप किया। वो सबसे हमारे जीवन में सबसे ज्यादा मैटर करता हमारे जीवन में। गलती इंसान से, मैंने जैसे बोला, हो जाती, इंसान गलतियों का पुतला। उसका मतलब मैं ये भी नहीं कहता कि भाई रोज जाके तुम उल्टे सीधे काम करो और शाम को माफी मांगो, वो भी नहीं कह रहा मुझे माफ करना। लेकिन हम जब तक इस पापी शरीर में है, मेरा जो टीचर था उसने मुझे बताया था, जिस दिन हम प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेते, हमारी आत्मा का उद्धार उसी दिन हो जाता। लेकिन जो ये हमारा शरीर है, ये हमें पाप की ओर खींच के लेके जाता, पाप के काम करने के लिए लेके जाता है ना। तो गलती हमसे हो जाती, लेकिन गलती करने के बावजूद देखिए, अगर अनजाने में हमसे कोई गलती हो जाती है तो बाइबल में लिखा, भैया सूर्य ढलने से पहले परमेश्वर से माफी मांग ले, है ना। तो इसने क्या कहा, गेहाजी ने क्या किया, गलती कर ली, उल्टा जो है जाके उसके सामने खड़ा हो गया और माफी नहीं मांगी। जैसे आदम ने क्या बोला, अरे प्रभु परमेश्वर, उल्टा परमेश्वर को जवाब दे रहा, बोल रहा है तूने जो औरत मेरे को बना के दी थी उसने मुझे खिला दिया। औरत भी बोल रही है मेरी क्या, उसने सांप ने तो मुझे बका दिया, मैंने खा लिया। अगर वो सीधा सीधा बोल देते प्रभु परमेश्वर हमसे गलती हो गई, हमको माफ कर दो, ऐसे ही। तो इंसान जो है, इंसान का एक नेचर है ना मानने का। बाइबल में लिखा है अगर हम पाप को मान लेते, पहली बात पाप को मान लेते, उसको स्वीकार करके छोड़ भी देते, तो हम पर दया की जाती। लेकिन अगर हम पाप करते रहते, उसमें बने रहते, फिर कोई दया वया नहीं भाई, फिर तो उधर जाना पड़ेगा, सोटे लगेंगे। सो गेहाजी ने क्या किया, सारा कबाड़ा करके अभी जो है सामने जाके खड़ा हो गया। और यहाँ पे जो है हम देखेंगे 5:25 में लिखा, तब वह भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ। एलीसा ने उससे पूछा, हे गेहाजी तू कहां से आता है? ठीक है, उसने पूछा तू कहां से आया भाई? उसने कहा तेरा दास तो, क्या लिखा, तेरा दास तो कहीं नहीं गया। फिर झूठ बोल रहा है, मसाला भी ले आया, घर में भी छिपाया आया, और बोल रहा है कहीं नहीं गया। समझ जाना चाहिए था भैया, सारा कुछ तो पता चल गया, अभी गलती माफ स्वीकार कर लेनी चाहिए थी, लेकिन उसने गलती को स्वीकार नहीं किया। क्या किया, आगे लिखा, उसने उससे कहा जब वह पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब से वह पूरा हाल मुझे मालूम था। क्या यह समय चांदी या वस्त्र या जैतून या दाख की बारियां या भेड़ बकरियां, क्या गाय बैल या दास दासी लेने का है? परमेश्वर आज कहता है क्या ये समय दुनियादारी की बातों को एंजॉय करने का है या परमेश्वर के धर्म और राज्य करने की खोज करने का है? क्या ये समय अपने जीवन में अस्त व्यस्त रहने का है या सुसमाचार को जाके लोगों को बताने का टाइम है? क्या हमारा भाई कोई मुसीबत में पड़ा है और उसको पता नहीं है, मुसीबत में मर रहा है? बहुत सारे लोग प्रभु को बिना जाने मर रहे हैं, है ना। ये टाइम इन बातों के लिए नहीं है। सीधा जो है एलिसा ने पूछा, गेहाजी ये टाइम क्या इन चीजों के लिए है और परमेश्वर के राज्य की खोज के लिए है?
हम विचार करें, ये जो हमारे पास समय है, हमको समय मिला है, हम क्या दुनिया में, माफ करना, मैं किसी को नहीं, मैं अपने आप को बोलता, क्या ये समय हमारे लिए परमेश्वर के लिए जीने के लिए, उसके राज्य को बढ़ाने का है या कुछ और करने का है? गेहाजी को इधर एलिया ने पूछा, क्या ये समय ये सारी चीजें ढूंढने का था या डबल पोर्शन मिलने का था? अगर हम इन वचनों को देखें तो एलिया का जो है डबल पोर्शन किसको मिला? एलीशा को मिला। और सेम जो है एलीशा का डबल पोर्शन गेहाजी को मिलना था, लेकिन गेहाजी ने टाइम को मिस कर दिया। हम सबके पास टाइम आता है और परमेश्वर सबको टाइम देता है, लेकिन ये हमारे हाथ में है कि हम टाइम का फायदा उठाते हैं या टाइम को मिस करते हैं। परमेश्वर हमको डबल पोर्शन देना चाहता है, परमेश्वर हमको डबल आशीषें देना चाहता है जिनके हम लायक नहीं है। क्या हम उसको पाने के लिए तैयार हैं या मिस करने के लिए तैयार? बहुत सारे आजकल अगर हम दुनिया में देखते हैं, मैंने बहुत सारी जगह बहुत सारे लोगों के साथ घूम के देखा है, बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे, मैं किसी के खिलाफ नहीं, माफ करना अगर किसी को दुख लगता है, बहुत सारे प्रीचर, बहुत सारा जो है प्रीचिंग बहुत अच्छे से शुरू करते हैं, बहुत सारे चर्चों में बहुत कुछ बहुत अच्छे से शुरू बहुत अच्छे से होता है, लेकिन एंड उसका यहाँ होता है पैसे पे। बहुत कुछ अच्छा से शुरू करेंगे, आखिर में समेट देंगे ले आके पैसे पे। क्या हमारा परमेश्वर हमको पैसे नहीं देता है? अरे बाइबल में लिखा है, ये सारी बातें तुम्हारे पीछे पीछे आएंगी, तुम उसके धर्म राज्य की खोज तो कर लो। अगर हम परमेश्वर की राज्य की खोज करते तो दुनियादारी की सारी आशीषें हमारे पीछे पीछे आती हैं, लेकिन अगर हम दुनियादारी की आशीषों को ढूंढने के लिए जाते तो भाई, मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर का राज्य पीछे रह जाता। इसलिए हमें जरूरत है कि हम जो है गेहाजी जैसे ना बन के एलीशा जैसे बने, परमेश्वर की आशीषों को पाएं, परमेश्वर के जो है अनुग्रह में चले और लोगों के लिए आशीष और दया का कारण बने। प्रभु इन वचनों के द्वारा सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की।